Hello students, welcome back to the second part of last time preparation. So first video we have seen lesson number 1 to lesson number 5. ये वीडियो में हम लोग को लेसन नंबर 6 से 9 तक देखेंगे. Again here we are going to have some same comparative study only. So sixth lesson is about population. Here you have to learn about the statistical data. Brazil population, India's population. Brazil density, India's density. Brazil's sex ratio, India's sex ratio. Brazil's area, India's area, area के हिसाब से ब्राजील में कितना है, इधर कितना है, ऐसे comparative study. Maybe one more question, so that is what is sex ratio आ सकता है 2 मार्क क्वेश्चन के लिए. एंड सेक्स रेशियो दोनों का डिफरेंट क्या है, कारण क्या है, और एक क्वेश्चन है कि इंडिया में सेक्स रेशियो कम है, ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकते हैं. ब्राजील में सेक्स रेशियो ज्यादा है, आपको मालूम है. ओके, यस. सो अगेन देयर इज अ कंपैरेटिव स्टडी, कंपेयर या डिस्टिंग्विश द पॉपुलेशन बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. सो द नेक्स्ट लेसन इज ह्यूमन सेटलमेंट्स. सेवेंथ लेसन में ओनली 4 क्वेश्चंस आते हैं. सो फर्स्ट वन इज द सेटलमेंट्स इन इंडिया, सेकंड वन इज सेटलमेंट्स इन ब्राजील, 4 marks. Then urbanization in India, then urbanization in Brazil. So this lesson is only 4 questions are there. When you are coming to the 8th lesson, we can divide into major 3 parts: primary occupations, secondary occupations, tertiary occupation. Primary occupation में agriculture, fishing and mining. इंडिया का, ब्राजील का देखेंगे. सो पहला है इंडिया का एग्रीकल्चर एंड ब्राजील्स एग्रीकल्चर. सेकंड आया है इंडिया का फिशिंग, ब्राजील का फिशिंग. थर्ड आया है माइनिंग ऑफ इंडिया, माइनिंग ऑफ ब्राजील. सो ब्राजील एग्रीकल्चर 4 mark, माइनिंग एंड फिशिंग 2 marks. इंडिया एग्रीकल्चर 4 mark, माइनिंग 2 marks and fishing 4 marks. Okay, then when you come to the second thing, it is about industries. Short notes on industries of Brazil 2 marks. Explain the industries of India 4 marks. Okay, so secondary occupation हो गया. उसके बाद में है tertiary occupation में क्या है, 3 types of question है, 2 mark, all 2 marks. India's trade, Brazil's trade, trade between India and Brazil. So इतना ही questions है. And tourism and transport, ये लेसन के अंदर 4 लेसन्स हैं. सो फर्स्ट वन इज टूरिज्म ऑफ इंडिया, टूरिज्म ऑफ ब्राजील, देन डिस्ट्रीब्यूशन. सेकंड वन इज ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया एंड कम्युनिकेशन ऑफ ब्राजील, then distribution between these two. Then transportation of India, transportation of Brazil. Then that's a distribution or comparison. And last one is the टाइमलाइन. ओके, टाइम एंड डेट. उसमें 1 mark क्वेश्चंस बहुत है. फॉर एग्जांपल इंडियाज स्टैंडर्ड टाइम, मैप क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स. देन ब्राजील स्टैंडर्ड टाइम, BRT. देन द डिस्टिंग्विश IST एंड BRT. देन 4 mark questions, 2 questions are there, Saurav and Ashwini question. Second one is the aeroplane leaving Brasilia, crossing GMT, crossing New Delhi, reaching Vladivostok. So ऐसा वाला क्वेश्चन है. You have to memorize Indian standard time कहाँ से जाते हैं, टाइम डिफरेंस, एक पूरा इसमें आता है. Okay, yes. Now let's have small discussion on graph also. So here you may have the single line graph, double line graph, simple bar graph, joint bar graph. So as far as this year is concerned, इतना ही है. So let us see a fast thing. Very easily you can get the marks. So fast देखेंगे. So this is a graph sheet in board exam. It will be in a blue color. Okay. So this is the first centimeter. This is second centimeter. This is third centimeter. Third line में y axis, same way. Third line में x axis. Heading carries half marks. Heading के लिए half mark है. You are going to copy from the question paper. है ना? सिर्फ क्वेश्चन पेपर
क्वेश्चन पेपर से कॉपी करके लिखने का आपको मिल जाएगा। देन स्केल में मेनी स्टूडेंट्स को मार्क जाते हैं, कैसा मालूम है? आप लोग लिखते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। नो, अब क्या करने का, 1 सेंटीमीटर वो यूनिट क्या होते हैं? सो यू शुड मेंशन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% पॉपुलेशन। आप लोग मेंशन करने का 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लाख रुपीस और 1 लाख टूरिस्ट जो दिया है क्वेश्चन पेपर में यूनिट, वो आप लोग लिखना पड़ता। एक्स एक्सिस 10 years, ओके। यस, अगर आपका टाइम है, यू आर लिटिल आर्टिस्टिक, यू कैन मेक योर बॉक्स अराउंड दैट, ओके। सो दिस वे कंटिन्यूअसली आप लोग एक ऐसा मार्किंग करने का, ये मार्किंग करने की वजह से आपका फिंगर प्रॉपरली मूव हो जाएगा, ओके। ऐसा मार्किंग करो, देन यू कैन राइट ऑन द लाइन। बड़ा फॉन्ट में, बड़ा अक्षरों में क्या करेगा, लाइन में नंबर लिखिए। ये जो मार्किंग किया उसको बीच में से नहीं लिखने का, बड़ा अक्षरों में लिखिए। सेम हेडिंग इधर साइड में लिखिए, फिर इधर 1 सेंटीमीटर छोड़कर 2 सेंटीमीटर में 1st ईयर, ओके। पहले ऐसा मार्किंग करके रखिए। 1960, 1970, 80, 90, 2000, 2010 और नीचे वर्ड में इमीडिएट नेक्स्ट लाइन में लिखिए ईयर्स। देन आपको शायद मालूम है पहले ही इसको राउंड अप करने का। सो फर्स्ट वन इज 47। सो 40 के बाद में 7वां लाइन में डॉट एंड सर्कल। सर्कल इसके लिए मदद करेगा, हाईलाइट करेगा आपका डॉट एग्जैक्टली किधर है, ओके। सेकंड वन 57, 50 के बाद में 7th लाइन में। देन 66, 60 के बाद में 6th लाइन में। देन 75, 70 के बाद में 5th लाइन में। देन 82, 80 के बाद में 2nd लाइन में। देन 85, 80 के बाद में 5th लाइन में। सो डॉट एंड सर्कल। आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट द डॉट टू डॉट, सर्कल टू सर्कल नहीं, डॉट टू डॉट, डॉट टू डॉट, डॉट टू डॉट। सो दिस इज द वे यू हैव टू प्रेजेंट, ओके। देन लेट्स गो टू द बार ग्राफ, ओके। सेम इन्फो, लेकिन हम लोग सिंपल बार ग्राफ में बनाने वाले। सो द सेम मेथड, 3rd लाइन में y एक्सिस, 3rd लाइन में x एक्सिस, हेडिंग कैरीज ऑफ मार्क्स, स्केल इन द सेम वे एंड y एक्सिस कंस्ट्रक्शन आल्सो इन द सेम वे। x एक्सिस पहले क्या करें किया आपने, 1 जोड़कर 1 ऐसा किया। इधर 2-2 सेंटीमीटर पकड़ के 1 सेंटीमीटर थिकनेस में क्या आएगा, बार आएगा। सो फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में 60, 1960, 3rd एंड 4th के बीच में 1970, 5th एंड 6th के बीच में 1980, ऐसा पहले कंस्ट्रक्ट करके रखने का, नीचे ईयर्स लिखने का। सो फर्स्ट वन इज 47, 40 के बाद में 7th लाइन में बार एंड शेड, ओके। कोई बच्चों लोग सर इसको शेड करना जरूर है क्या, ऐसा याद रखिए बच्चों। गुड टीचर, एक अच्छा टीचर क्या बोलती है, इसको शेड नहीं करने का ऐसा बोलती है। लेकिन द बेस्ट टीचर क्या बोलते हैं, शेड करो, नहीं तो स्लैंटिंग लाइन करो। ऐसा करना अच्छा है क्योंकि विजिबिलिटी देखना तुरंत अच्छा दिखेगा। एंड द सेम वे आप लोग क्या कर देगा, दूसरा भी मार्क कर देगा, ओके। सो व्हेन यू आर कमिंग टू द 3rd वन, इट इज डबल लाइन ग्राफ, ओके। सेम वे 3rd लाइन में y एक्सिस, 3rd लाइन में x एक्सिस, बाकी कंस्ट्रक्शन पूरा सेम टू सेम। पहले आप क्या करेगा, ब्राजील का, हियर वी आर कंपेयरिंग 2 कंट्रीज, इंडिया भी है और ब्राजील भी है। पहले आप ब्राजील का सेम मेथड में डॉट सर्कल करने का, ओके। देन आप लोग ने क्या करने का, इंडिया और ब्राजील के बीच में डिफरेंशिएट करने का। इसके लिए इधर स्ट्रेट लाइन नहीं करने का, यू कैन मेक ए डैश लाइन और डॉट लाइन कर सकते हैं। सेम वे इंडिया में भी क्या करने का, अकॉर्डिंग टू द टेबल मार्क करने के बाद में हियर अनब्रोकन लाइन, कंटिन्यूअस लाइन से आप क्या करने का, मार्क करने का। हो गया क्या, नहीं, और एक काम बाकी है, डिस्टिंग्विश करने का ना दोनों को, विच वन इज ब्राजील, कौन सा वाला इंडिया, इसके लिए इंडेक्स करने का। सो एनसर्कल्ड डॉट with broken line, that is Brazil. Encircle the dot with unbroken line, India.
The same way we are going to see the joint bar graph. Joint bar graph में suppose data ज़्यादा है तो 1 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ बार नहीं लेने का, 0.5 फॉर इंडिया। मैप हो या ग्राफ हो, छोटा एरिया जो है उसको शेड कर दीजिए क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग, और बड़ा एरिया जो है उसको स्लैंटिंग लाइन कर सकते हैं। कभी कभी बच्चों लोग बोलते हैं सर मैं बड़ा एरिया का ऐसे ही छोड़ दूं। नो, ए गुड टीचर सेज कुछ करो मत, बट द बेस्ट टीचर सेज यू हैव टू शेड इट, ओके। एंड द सेम वे द गैप विल बी 1 सेंटीमीटर, देन 0.5 फॉर इंडिया, 0.5 फॉर ब्राजील, फिर गैप 1 सेंटीमीटर। ऐसा आप क्या करने का, कंसाइड करने का। अगेन इंडेक्स कंपलसरी, अगर आप इंडेक्स फॉरगेट हो गया देन आधा मार्क जाते। सो दिस स्लैंटिंग लाइंस, ब्राजील अर्बनाइजेशन एंड शेडेड एरिया है, दैट इज इंडिया अर्बनाइजेशन। एंड वन मोर ग्राफ वी आर गोइंग टू सी हियर। वी आर अभी तक हम लोग क्या देखा, देयर इज ए कंटिन्यूटी ऑफ ईयर्स। Suppose if there is a jumping or there is a break in the continuity of the years, पहला पूरा 10 साल में आया, अचानक बीच में क्या हुआ, 2011 के बाद में अचानक 2016 आया। So there is a break in the continuity, तभी आप लोग क्या करने का, क्रिंक सिंबल यूज करने का। So क्रिंक सिंबल कैसा यूज करने का मैं बताता हूँ पहले। So ये है क्रिंक सिंबल, ओके, दिस इज द एक्सिस, देन ऊपर जाते, फिर नीचे आते, फिर ऊपर जाते, फिर एक्सिस में ज्वाइन करते। इसको क्या करने का, जो जगह पे ब्रेक आते उधर ऐड करने का। अभी देखिए इधर ब्रेक आया 2011 और 16 के बीच में, इसलिए मैं इधर क्रिंक सिंबल डाला। बाकी पूरा आप क्या करने का, सेम मेथड में करने का। एंड बार ग्राफ को भी ऐसा ही करने का है, ओके। Again, you have to write the index for Brazil broken line, for India unbroken line, okay. अभी इसका पहला भी वीडियो से सुपर मॉडरेटर सेशन, ऐसे मॉडरेटर क्या आप लोग से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, कैसा प्रेजेंटेशन करने का, हाल टिकट को क्या करने का, क्या नहीं करने का, बीमारी हो गया तो क्या करने का, कैसा प्रेजेंट करने का, ये पूरा अपना पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 में अपना वीडियोस में है, देखिए। और 4 मार्क क्वेश्चन को कैसा स्टेंसिल यूज करने का वो भी है। इंडिया और ब्राजील दोनों को स्टेट्स कैसा याद करने का सिंपल मेथड फार्मूला के तरह वो भी अपना वीडियोस में है, आप देख लीजिए। और डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, बेल आइकन, ओके, या लाइक, ओके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।